Assalamualaikum. Hi Khalko. I hope everyone is okay. Again with a family gathering vlog. So I just get ready, cook for Miko a birthday. Mika, Dina's and Siddiq's son. And the birthday party is in Dina and Siddiq's house. And we all going. Girls are just left. And I cook all the food. I will show you. And I get ready. I'm wearing again a Marks Spencer dress and top to bottom Marks Spencer. So let's begin. मीको का प्रेजेंट रेडी है, कार्ड रेडी है और मैंने अभी मीको के लिए ढेर सारे कपड़े लिए हैं. सो तकरीबन कोई 20-21 आउटफिट मैंने उसके लिए लिए है. मैंने कहा टॉयज सब आंटीज़ दे रही हैं तो मैं कपड़े दे रही हूँ. और अभी आपको फूड भी दिखाती हूँ. तो आज दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्योंकि मेरे घर के पास 3 बीचेस हैं, टर्को बे और ये क्या उसे कहते हैं कोनी बीच और कोतकोल बीच. तो अभी ये मेरे घर से 3 मील दूर मैं आ गई हूँ और स्टिल क्यू है इस तरफ. ये बिल्कुल मेरे घर के करीब जा रहे हैं और ये लगातार क्यू है मेरे घर से लेके, तो ये 3 मील तक ये क्यू है. वही क्यू चल रहा है. अभी तकरीबन 4 मील दूर आ गई हूँ अपने घर से और वही क्यू है. माय गॉड, आज मेरा एरिया बहुत ज़्यादा बिजी होगा. बस अब धूप होती है तो फिर हमारे घर से निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये इस तरह से लंबा क्यू होता है. हर तरफ से लोग हमारे घर के पास इन बीचों पे आते हैं. सो मीका की बर्थडे का यहाँ सारा तैयार किया हुआ है. Thanks to you. Dina did a good job, mashallah. Dina didn't do anything. Mashallah, mashallah. Dina did nothing. You did it all. They got mum's Wow. Yeah, but everyone. I'm just doing a picnic. Children enjoying their food. Birthday boys here. Hey, don't go out. Don't go out. Don't go out. Look what they're doing. Yeah, I'm going to record them. Have a go. Baba did. He had a go. He's brave, no me. Malia filmed it. It's too funny. Siddiq show off with his scooter. Did you? Yeah. Ooh. Dina, you give him that, isn't it? For his birthday. Yeah. He's gone. You got that. There we are. I can see him. Now Yusuf turned to drive. Woo! Tall on it. Wow. Right now. Really easy going. It's look quite fast. It is fast. It goes 25 miles. Or I think I need one. I think I need one now. yeah, you're gonna sit on it. You're gonna sit on it. Hannah, come on. Oh my God, Ella! Where you go? Go on. No, it's Yusuf. Come on, Yusuf. There you go. Yay. Wow. Okay. Come on. On again, Dina. Go on again. Go round. I'm gonna leave yours as well, okay? Go on, Hannah, here. Hannah, go round. Caleb! Bismillah. Am I watch your hair? Look, he's smiling. Where's Hannah? Hannah, where is she? Here she is. Don't touch it, Mika, don't touch it. This one as well? Yeah. It's all about. You should put it in the middle of the
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mika. Happy birthday to you. Hooray! Hooray! Yay! No, this is Mika, don't touch it. Hold it back, hold it back. Don't touch it. Wow. On three, make a wish and blow. One, two, Three, blow it. blow it. How do you go? Blow it. Yes, everybody should do it together. Don't need to let it go. मैंने एक ड्रामा हम टीवी का शुरू किया। किसी ने मुझे रिकमेंड किया था मेरे YouTube चैनल पे कि ममा ओडारी ड्रामा देखो। मैंने वो YouTube से शुरू किया और अपने YouTube को अपनी टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे देखा। ड्रामा क्या था, मैं उसके लिए रोई। उसमें एक आदमी है जो कि अपनी बीवी की बच्ची, जो कि ऑब्वियसली हमारे इस्लाम में है कि अगर आप जिस औरत से शादी करो तो वो जो औलाद अपने साथ पहले खावन से लेके आती है वो ऑटोमेटिकली आपकी महरम बन जाते हैं, और इवन आपकी बीवी मर जाए या तलाक हो जाए फिर भी आप उसकी औलाद से, उस पहले वाले खावन की औलाद से निकाह नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में है। क्योंकि अगर किसी बच्चे की माँ हमारे निकाह में आ जाती है या किसी बच्चे का बाप हमारे निकाह में आ जाता है और वो बच्चा बेशक हमारा ना हो, किसी और खावन या किसी और बीवी से हो, इस्लामिकली वो हमारा बच्चा हो जाता है और हम उससे इस्लामिकली निकाह नहीं कर सकते। लेकिन आपको सबको पता है कि मैं चैरिटी वर्क भी करती हूँ और मुझे 1000 लोगों से मिलती हूँ, और इसके अलावा मैं चाइल्ड अब्यूज़ में भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हेल्प करती हूँ, और डोमेस्टिक वायलेंस और ये जो वुमेन अब्यूज़ इन सब में मैं वॉलंटियरली काम पिछले 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अपने शॉप अपने बिज़नेस की तवस्सुत से भी मैं करती हूँ। वहाँ लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, हेल्प मांगते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं तो 50, 60, 70 औरतों की, बच्चों की मैंने हेल्प करने की कोशिश की है। किसी को मैंने किसी इदारों के साथ मिलाया है, किसी के लिए पुलिस को रिपोर्ट की है, किसी के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए रिपोर्ट की है। पर अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प देम, क्योंकि हमें इस्लाम यही सिखाता है। इस्लाम क्या, एवरी रिलीजन यही सिखाता है कि हमें औरतों और बच्चों के साथ स्पेशल रवैया रखना चाहिए, स्पेशल। अब इस ड्रामे को देखने के बाद मुझे रोना भी आया और बहुत अफसोस भी हुआ, क्योंकि यूके में या ऐसे मुल्कों में जहाँ दीन नहीं है, जहाँ लोग मज़हब को फॉलो नहीं करते, वहाँ ये मिस्टेक काफ़ी होते हैं। वहाँ काफ़ी लोग होते हैं ऐसे इन मुल्कों में जो कि अल्लाह को नहीं मानते, जो गॉड को नहीं मानते, जो ऊपर किसी को नहीं मानते और जो मज़हब को नहीं मानते। तो वो अगर ऐसी गलतियाँ करे तो समझ में आ जाती हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक इंसान किसी मज़हब को फॉलो ना करे तो वो इंसान अस्तग़फिरुल्लाह एक जानवर की तरह होता है, क्योंकि मज़हब जो मज़हब भी हो वो आपको गाइडेंस देता है। तो अब ये है कि यहाँ पे ये केसेस आते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ हो गया तो बच्चों के साथ अपने घर में भाई ने या मामू ने या बाप ने उसको सेक्सुअल अब्यूज़ किया या फिज़िकल अब्यूज़ किया या मेंटल अब्यूज़ किया, जिस तरीके से भी। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे मुसलमान जो कि अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही समझते हैं और वो लोग भी ऐसे काम करते होंगे। 1-2 केसेस आए थे पिछले साल के पाकिस्तान में, वो
एक दो बच्चियां थी, यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ आए थे कि वो किसी ने आदमी ने उनको अब्यूज़ कर दिया था, सेक्सुअल अब्यूज़, और मार डाला था। और दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं समझती थी, ट्रस्ट मी, आप यकीन करें या ना करें, पर मैं नहीं समझती थी कि मुसलमान कंट्री में भी ये काम होते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में, क्योंकि मैं बस उनको फरिश्ता सीरत समझती थी। शायद मैं रॉन्ग थी, लेकिन जो भी था मैं उनको ऐसे समझती थी, और मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ थे। और अब ये जो उडारी ड्रामा कल मैंने देखा तो ओह माय गॉड, आप यकीन करें, वो जो ड्रामे में, हालांकि मुझे पता था ये फेक है, ये एक सीन है, लेकिन मेरा दिल ठस 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 करके हो रहा था, और मेरा आंखों से आंसू जा रहे थे, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी इमोशनल हो गई थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस टीवी में घुस के इस आदमी का कत्ल करूँ और क्या करूँ। ओह माय गॉड, मैं हैरान हूँ कि जिन माँ बाप पे ये गुजरती होगी, वो उनके लिए तो पता नहीं, नो वर्ड्स। पर आप सबसे जो भी मेरा ये यूट्यूब चैनल देखते हैं, अल्लाह करे कि आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई वाक़या ना आए कि आपको या आपकी फैमिली को ऐसा फेस करना पड़े। लेकिन आई थिंक आप लोग मुझे मम्मा कहते हो, इज़्ज़त देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो उसकी वजह से मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूँगी कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ, उनके साथ ऐसे टर्म्स और ऐसे ताल्लुकात रखो कि वो आप पे ट्रस्ट करे, ताकि ज़िंदगी में उनके साथ कोई भी बुरा भला हो तो वो आपको बताए। मुझे अब ये बातें सुन के मुझे याद आता है कि मेरी मम्मा हमारे साथ बहुत क्लोज़ होती थी, और मेरी अम्मी, मुझे तो छोड़ो, मेरे भाइयों को भी कहीं रात रहने के लिए नहीं छोड़ती थी। और मुझे याद है कि एक दफ़ा हम अलाउड नहीं होते थे कि हमारी फ्रेंड हमारे घर आए, बस स्कूल तक ताल्लुक़, और स्कूल के बाद ख़त्म। मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। बच्चे जब बिगड़ते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, इनमें माँ बाप का कसूर नहीं होता, पर माँ बाप का इतना कसूर होता है कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होते। वो बच्चों को डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं, ऐसा कर दूंगा, वो ऐसा कर दूंगे, ये हो गया। तो बच्चे डर के मारे अपनी तकलीफ़ शेयर नहीं करते हैं, और माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके साथ एक बच्चा अपनी तकलीफ़ शेयर करे। तो मुझे ये उडारी ड्रामा देख रही थी तो मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड आई थी और मुझसे कुछ नोट्स मांगने आई थी। मैं क्लास 8 में पढ़ती थी, लेकिन मैं 26 सी गर्ल थी और अपनी उम्र से बड़ी भी लगती थी। तो हालांकि 13-14 साल की होंगी, 13 साल की होंगी, वो आई थी तो मेरे पास नोट्स लेने। तो आउट ऑफ कर्टसी वो जो खाला थी हमारे घर में, उसने उसको चाय की ऑफ़र की और वो और बिठाया। तो वो जो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ काफ़ी क्लोज थी, तो उसने मुझे ऐसे गले लगा के मेरी चीक्स को ऐसे पुल किया। पर वो जो लड़की थी वो मेरी फ्रेंड, वो जो थी मुझसे उम्र में बड़ी थी थोड़ी सी। आई डोंट नो व्हाई, मेरी क्लास फेलो थी पर मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब मुझे नहीं पता कि उसकी एजुकेशन में क्या मसला था कि वो मेरे से उम्र में बड़ी थी, 2-3 साल मेरे से उम्र में बड़ी थी। मेरी अम्मी आई और मेरी अम्मी ने देखा, वहाँ ही बैठ गई, हिली नहीं। और फिर जब वो जो मेरी दोस्त है वो चली गई तो मेरी अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे बिठा के पूछा कि इस लड़की ने तुम्हारी चीक्स को ऐसा पुल क्यों किया। तो मैंने कहा मामा ये तो हमेशा मुझे प्यार करती है और मेरी चीक्स को पुल करती है और हमेशा मुझे कहती है कि आई एम हर बेस्ट फ्रेंड, कि मैं उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड हूँ। और हमेशा मुझे तो मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने मेरी पूरी 1 घंटा की क्लास ली, मुझसे पूछा कि कहाँ मैं उसके साथ जाती हूँ, मैं स्कूल में उसके साथ प्राइवेट में मिलती हूँ कि नहीं, उसने मुझे कभी किस किया है कि नहीं। हालांकि लड़की थी, लड़का भी नहीं था, लड़की थी। और मेरी अम्मी ने इतने सवाल किए कि मैं मासूम सी थी, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि ये तो मेरी अम्मी ने बताया है कि अपने कज़न्स के साथ ना बैठो और ये ना करो और वो ना करो, पर ये क्या माजरा है कि मेरी अम्मी
लड़की से भी मना कर रही है कि लड़की को भी अलाउड नहीं कि तुम्हारी चीक्स पुल करे या तुम्हें हग करे या तुम्हें किस करे। और अब मेरी ये बातें समझ में आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ऐसी माँ थी जिसने मुझे समझाया, मुझे खुल के समझाया मेरी माँ ने मुझे फिर कि माशरे में ये चीज़ें होती है। और मुझे वो अम्मी ने बताया कि कुछ लोग गलत होते हैं, वो सिर्फ मर्द नहीं या औरत या बॉयज़ नहीं, औरतें भी गलत होती हैं। तो अगर कोई तुम्हें टच करे या कुछ करे तो तुम सीधा आके मुझे बताओगी और मुझे एक्सप्लेन करोगी। सो मैंने वही तरीका अपने बच्चों के साथ किया हुआ है। मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि स्कूल में, टीचर्स, फैमिली में कोई भी अलाउड नहीं है कि आप लोगों को हक करे या किस करे या फिजिकल रिलेशन किसी के साथ आप ना करें, चाहे वो आपका बड़ा ही क्यों ना हो। तो यही बात है कि मेरे बच्चे हालांकि मेरे भाई हैं, वो बहुत ही शरीफ इंसान है और बहुत ही प्यार करने वाले, पर मेरे बच्चे उनको भी गले नहीं मिलते, बस सलाम करके सर झुका देते हैं। और ना ही मेरे भाई उनको ऐसे हक हुक करते हैं, बस सर पे। हमारी फैमिली का दस्तूर यही है कि हम सर पे बोसा देते हैं। तो आप लोगों से बस ये एक दरख्वास्त है कि अपने फैमिली में ठीक है ट्रस्ट करे, एक दूसरे को प्यार करे, सारा कुछ करे, लेकिन अपने बच्चों को जब भी आपके फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हो या रिश्तेदार हो या मोहल्ले वाले हो बात करें तो आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। और आप अपने बच्चों को इतना फ्रेंडली बनाएं कि वो आपसे आके हर बात शेयर करे, ताकि वो आपको बताए कि मम्मा मेरे साथ ये हो रहा है, पापा मेरे साथ ये हो रहा है, ताकि आप उनकी इस्लाह करें। आप प्लीज़ बच्चों को ना डराएं, क्योंकि कभी कभी बच्चे डर जाते हैं और डर के आपके साथ वो अपना कुछ भी शेयर नहीं करते। सो ये एक मैसेज है सदके जारिया की तौर पे मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरा किसी का दिल आज़ारी का वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए या मैं किसी पे ब्लेम करना चाहती हूँ, लेकिन गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और कभी कभी इन गलतियों को नज़रअंदाज करके हम दुनिया को खुद अपने हाथों से तबाह कर देते हैं और अपने बच्चों को और अपने फैमिली को। सो बी केयरफुल। अच्छा, आप लोगों के साथ बातें कर रही थी, इमोशनल हो गई और मेरा खाना बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं खाना खाती हूँ और क्योंकि मैंने नमाज भी अभी नहीं पढ़ी, मैंने असर नहीं पढ़ी, तो मैं जाके अभी असर पढ़ूंगी इंशाल्लाह और मैं मोटे मोटे से नवाले लेती हूँ ताकि मैं फिर घर जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मी ने मना किया था कि जब भी खाना खाओ तो बोलो नहीं, तो आप यकीन करें जब भी खाती हूँ फंस जाता है। तो सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।